آج ہم ایک ایسے کردار کی داستان لے کر آئے ہیں جو صرف ایک ملکہ نہیں بلکہ عقل، انصاف اور ہدایت کی مثال تھی، جس کا نام ہے ملکہ بلقیس۔ یمن کے شہر سبا میں جب سورج کی روشنی پہ سجدہ کیا جاتا تھا، جب لوگ ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے، تب وہاں ایک ملکہ تھی جو ان اندھیروں میں روشنی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ملکہ طاقت میں بے مثال تھی، مگر اپنے دل میں کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھی، ایک روشنی، ایک ایمان کی دولت۔ اس کہانی کی خوبصورتی صرف اس میں نہیں کہ ایک ملکہ اپنے لوگوں کے لیے فیصلے کرتی تھی، بلکہ اس میں ہے کہ جب اس تک اللہ کا پیغام پہنچا تو اس نے اسے گھمنڈ سے نہیں، دل سے سنا۔ نہ کسی لڑائی کی ضرورت پڑی، نہ کسی خون خرابے کی۔ اس نے سچ کو پہچانا اور پھر وہ راستہ چنا جو سچا اور ایمان کا راستہ تھا۔ یہ کہانی صرف ایک ریاست یا تخت کی نہیں، یہ کہانی ہے قلب کے بدلنے کی، یہ کہانی ہے ایمان کے جاگنے کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور حکمت کی، جن کے ایک چھوٹے سے خط نے ایک بڑی قوم کا عقیدہ بدل دیا۔ تو دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں یہ روحانی سفر، جہاں عالی شان تخت پر بیٹھی ایک ملکہ نے اپنے گھمنڈ کو گرایا اور اپنے رب کو پہچانا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی اور ویڈیوز سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی سب سے پر اثر ملکہ بلقیس۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ یہ وہی بلقیس تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہمسفر بنی۔ بلقیس کی سلطنت یمن سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بلقیس آدھی انسان تھی اور آدھی جن، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن میں اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس نے 9 سال تک بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ حکومت کی۔ یہ کہانی ایک ملکہ سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد سے شروع ہوتی ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو لوگوں کی باتیں سمجھتا تھا اور دور دراز کے علاقوں سے عجیب و غریب خبریں لایا کرتا تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت چہیتا تھا۔ اسی ایک چھوٹے سے پرندے کی وجہ سے ایک ایسی ملکہ نے اسلام قبول کیا جو سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، اور اس طرح اس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ والد کی موت کے بعد ملکہ بلقیس نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ بلقیس ایک بہت ہی قابل عورت تھی اور اس نے تقریباً 9 سال تک بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ حکومت کی۔ دنیا کے بہترین علاقوں میں جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ سب قوم سبا کے ہاتھ میں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت ہی دولت مند تھی۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی۔ چاروں طرف ان کی بادشاہت کا ڈنکا بجتا تھا۔ تاریخ میں اس بادشاہ کو حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان، ہوا، پانی، جنات، چرند پرند سب پر حکومت عطا فرمائی تھی۔
एक दिन की बात है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन दरबार में मौजूद थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो दरबार में मौजूद नहीं था। वैसे तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते थे, लेकिन हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा खिदमत करने वाला परिंदा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज कोई मामूली फौज नहीं थी। उनकी फौज में इंसान, जिन, परिंदे और जंगली जानवर सभी शामिल थे। हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म में थी। वो जहां चाहते थे हवा उन्हें वहां उठा ले जाती थी। इंसानी फौज में पैदल फौजियों के साथ घुड़सवार भी थे और जिन जो इंसानी आंखों से गायब होते थे वो भी मौजूद थे। इसी वजह से ये लश्कर दुश्मन के लिए दहशत का सबब था, क्योंकि उसका बहुत सा हिस्सा दिखाई ही नहीं देता था। परिंदों में बाज और शाहीन जैसे शिकारी परिंदे भी शामिल थे, मगर सबसे खास जिम्मेदारी थी हुदहुद के पास। ये फौज का इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इसका काम था दुश्मनों के इलाकों में जाकर जासूसी करना और वापस आकर खबर देना। जब फौज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए इकट्ठा हो रही थी, कुछ जानवरों ने महसूस किया कि वहां हुदहुद तो है ही नहीं। सब ने धीरे धीरे आपस में कहना शुरू किया, अमीर लश्कर बस पहुंचने ही वाले हैं और हुदहुद गायब है। और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर के पास आए तो लोगों के बीच फुसफुसाहट और ज्यादा हो गई। वाकई हुदहुद गायब था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए और फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की कोई ठोस वजह न बताई तो मैं उसे सजा दूंगा। लेकिन असल में हुदहुद उस वक्त सबा की मलिका के मुल्क में था। उसने एक लंबी उड़ान भरी थी और उसके दिल में था कि वो कोई जरूरी बात लेकर लौट रहा है। वो एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठा, शहर के ऊपर। वहां से उसने हर चीज देखी, सड़कें, महल, दरवाजे। उसे लगा कि कुछ गैर मामूली होने जा रहा है। लोग किसी खास प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उसने वहां रहने वाले दूसरे हुदहुद से पूछा, प्यारे हुदहुद, मुझे बताओ ये शहर में क्या हो रहा है? दूसरे ने जवाब दिया, लोग अपनी मलिका यानी मलिका सबा के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वो सब मिलकर सूरज के सामने सजदा करने वाले हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जासूस परिंदे ने अब यकीन कर लिया कि उसका शक बिल्कुल सही था। पहले फौज के अफसर आए, फिर सैनिक और फिर सबसे बाद में मलिका अपने तख्त पर जाहिर हुई। वो उतर कर आई, अपने हाथ उठाए और सूरज को सजदा किया। सारी रियाया ने भी उसके साथ सजदा किया। हुदहुद ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात का क्या जवाब देंगे। हुदहुद फौरन उड़कर वहां से वापस चला। दिन रात का थका देने वाला सफर तय करने के बाद वो लश्कर के पास पहुंचा। सब परिंदे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए, नाराज थे। एक छोटी सी चिड़िया बोली, तू कहाँ था? हमारे रहनुमा ने तेरा नाम लिया था। हुदहुद और ज्यादा परेशान हो गया। वो सीधा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया। डर के मारे उसका जिस्म कांप रहा था। नबी खुदा उस वक्त अपना खाना ले रहे थे। हुदहुद एक खिड़की से अंदर आया और चुपचाप दस्तरख्वान के एक कोने पर बैठ गया। वो अपने आका के हाथों से दूर बैठ गया, सर झुकाकर सलाम किया और हल्की सी नजर
सिर्फ उनके हाथों तक उठाई। वो इतना शर्मा गया था कि उनका चेहरा तक नहीं देख सका। हुदहुद ने सोचा कि पहले उसे ही बोलना चाहिए। उसने सच्चाई का सहारा लिया जो उसने अपने नबी से सीखा था। हुदहुद ने कहा, या नबी अल्लाह, मैं एक दूर का सफर तय करके आया हूँ और ऐसे लोगों की खबर लाया हूँ जिनके बारे में आप नहीं जानते। मैंने आज एक ऐसी सल्तनत देखी जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं, और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चांद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। शैतान ने उन्हें गुमराह कर रखा है और बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात और लाल चढ़े हुए हैं और उसके पास तमाम ऐशो आराम की चीज मौजूद हैं। ये अल्फाज दिल को हिला देने वाले थे। हुदहुद के पास सच में देरी की वजह थी। वो एक अहम मिशन पर था। हुदहुद की बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन हम इस बात की तस्दीक करेंगे। मैं एक खत लिखता हूँ, तुम ये खत उन तक पहुँचाओ और खत पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर तुम ये देखो कि वो क्या करती है, मेरी बात को मानती है या नजरअंदाज कर देती है, और फिर वापस आकर मुझे सारी खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम एक खत लिखा जो कुछ इस तरह से था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत और रहमत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की तरफ से मलिका बिल्किस के लिए है। जो हिदायत की पैरवी करें उसके लिए सलामती है। मुझसे जंग की ख्वाहिश ना करो बल्कि मेरे फर्मा बरदार हो जाओ। दरअसल ये खत मलिका और उसकी कौम के लिए दावत इस्लामी था। हुदहुद ने मोहर लगा हुआ खत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लिया और फौरन सबा की तरफ उड़ गया। वहां पहुंचकर वो महल के बाग के एक दरख्त पर बैठा और मलिका के कमरे को ढूंढने लगा। उसने एक बड़ी सी बालकनी वाला कमरा देखा, वही बिल्किस का कमरा था। हुदहुद ने खत अपनी चोंच में लिया और खुली खिड़की से अंदर चला गया। वो छत की एक जीनत के पास छुप गया। उसने देखा कि मलिका अपने बिस्तर पर सो रही है। उसके बालों की लहरें तकिए पर बिखरी हुई हैं। उसका चेहरा नूरानी और खूबसूरत है। हुदहुद को उसकी खूबसूरती देखकर अफसोस हुआ। वो सोचने लगा, जिसके पास इतनी दौलत, हुस्न और ताकत है, वो भी सूरज को सजदा करती है। ये सब शैतान का फरेब है। उसने सोचा, अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज इन पर चढ़ाई करे तो वो ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन मलिका मजबूत है, मगर नबी की फौज को हराना नामुमकिन है। हुदहुद सोच रहा था, क्या मैं ये खत अब गिरा दूं या मलिका के पूरी तरह जागने का इंतजार करूं। इसी बीच में अचानक खत उसकी चोंच से छूट गया और सीधा मलिका के बिस्तर पर गिरा। मलिका की आंखें खुली। उसने देखा कि एक खत उसके सामने पड़ा है। उसने घबराकर इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। डर के साथ उसने खत खोला और धीरे से पढ़ना शुरू किया। उस खत में लिखा था, ये पैगाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। मेरे सामने घमंड से पेश मत आओ, बल्कि फर्माबरदार बनकर मेरे पास आओ। ये अल्फाज सुनकर मलिका बिल्किस गुस्से से भर उठी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसने गुस्से में अपने सिपाहियों को बुलाया। कौन है जिसने मेरी चौखट पार की? किसकी हिम्मत हुई कि मेरे कमरे में दाखिल हो गया? कौन है जो इस तरह उसका पैगाम लाकर चला गया, और वो भी बिना दिखे? सिपाहियों ने कसम खाकर कहा, मलिका, हम हाथों में तलवारें लिए हर वक्त निगहबानी कर रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं गया। इस दरमियान हुदहुद एक छत के कोने में छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा था।
मलिका ने जोर से पुकारा, अगर कोई नहीं आया तो ये खत कहां से आया? उसने हाथों में वो खत लेकर ऊपर उठाया। हर कोई हैरान था। उस राजदार खत ने दरबार में हड़कंप मचा दिया। फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। दरबारी जमा हुए। मलिका बिल्किस ने कहा, मेरे सलाहकारों, मुझे सुलेमान नाम के बादशाह का पैगाम मिला है। वो अल्लाह के नाम से शुरू करता है और मुझे कहता है कि मैं उसके पास सिर झुका कर जाऊं। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? एक दरबारी बोला, इसका मतलब है कि वो हमसे इताअत चाहता है, यानी जंग की तैयारी करो। दूसरा बोला, हम ताकतवर हैं, उसे दिखा देते हैं हमारी ताकत क्या है। ज्यादातर सलाहकार जंग के हक में थे, लेकिन तभी एक बुजुर्ग और समझदार वजीर ने पूछा, वो शख्स कहाँ है जो ये खत लाया है? उसी से तो हमें असल मकसद समझने को मिलेगा। मलिका ने धीरे से कहा, मैंने तो ये खत अपनी आंखें खोलते ही पलंग पर पाया, कोई नजर ही नहीं आया। वही वजीर बोला, अगर वो पैगाम इतनी अजीब और ताकतवर अंदाज में पहुंचा सकता है बिना किसी के नजर आए, तो सोचिए उसकी जंगी ताकत कैसी होगी। मलिका ने कहा, जब बादशाह किसी सरजमीन पर हमला करते हैं तो वहां सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, इज्जतदार लोगों को भी जलील कर डालते हैं। मुझे डर है कि हमारे साथ भी यही हो सकता है। मलिका बिल्किस एक बड़ी ही काबिल औरत थी। उसने अपने वजीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान ही होता है और जंग में हमें किसी तरह का फायदा नहीं होगा। मलिका ने कहा, हम कुछ खजाने और तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजेंगे। अगर वो बादशाह हैं तो हमारा तोहफा कबूल कर लेंगे और फिर हम उनसे जंग करेंगे, और अगर सच में वो अल्लाह के नबी हैं तो वो हमारे तोहफे कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में दाखिल होने के लिए कहेंगे। दरबारियों ने हामी भरी। शाही फनकारों को हुक्म दिया गया कि एक ऐसा तोहफा तैयार किया जाए जो सोने और जवाहरात से भरपूर हो, चाहे जितनी भी लागत क्यों ना आ जाए। आखिरकार वो तोहफा तैयार हो गया। एक बड़ी सोने की थाल जिसके किनारे 2 सोने के भेड़िए बने हुए थे। मलिका बहुत खुश हुई और कहा, इसे सुलेमान बादशाह के पास भेजो और साथ में एक फौजी अफसर भी भेजो जो उनकी ताकत का जायजा ले सके। हुदहुद ये सारी बातें सुन रहा था। उसने तुरंत आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बातें बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्तों पर सोने चांदी की परत चढ़ा दो और रास्ते के दोनों तरफ सोने चांदी के अजीब किस्म के जानवर खड़े कर दिए जाएं। सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का बना दिया जाए और दरबार को हीरे जवाहरात से सजा दिया जाए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो पूरे तामझाम के साथ कदम ताल करें ताकि मलिका के कासिदों पर रौब पड़े। जब वो काफिला पहुंचा, उन्होंने जो देखा उस पर यकीन नहीं आया। इंसान तो थे ही, साथ में शेर, बाघ, हाथी, परिंदे और हवा से उड़ने वाली फौजें भी थीं। कुछ हथियार तो अपने आप हरकत कर रहे थे। एक अफसर ने कहा, ये तो सिर्फ जिन्नों की सुबह की मशक है। जब मलिका के कासिद दरबार में पहुंचे तो उनके दरबार की शान और शौकत को देखकर शर्मिंदा हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद मिलने नहीं आए। उन्होंने अपने एक अफसर को भेजा जो मेहमानों को खाने पर ले गया। वहां उन्होंने अपने कीमती तोहफे पेश किए। अफसर वो तोहफे लेकर अंदर गया, लेकिन कुछ ही देर में वापस आ गया। उसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये तोहफे कबूल नहीं किए। फिर उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पढ़ा। क्या तुम समझते हो कि दौलत से मुझे खुश कर लोगे? अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो तुमसे कहीं बेहतर है। मुझे अल्लाह ने जो अता फरमाया है उसके आगे दुनिया की कोई दौलत, कोई खजाना,
किसी काम का नहीं है। तुम ये सारे तोहफे वापस ले जाओ और अपनी मलिका से कहना हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर वहां आएंगे। कासिद डर गए और उन्होंने पूछा कि हजरत सुलेमान आखिर क्या चाहते हैं। अफसर ने कहा, सिर्फ एक चीज कि तुम्हारी मलिका और उसकी कौम अल्लाह के सामने सर झुका दे। कासिद वापस पहुंचे। मलिका सो रही थी, मगर उन्हें हिदायत दी गई थी कि अगर कासिद लौटें तो उन्हें फौरन उठाया जाए। नींद से जागते ही मलिका ने पूछा, बताओ सुलेमान ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम उनसे मिले ही नहीं। उनका एक अफसर आया, उसने तोहफे वापस कर दिए और कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह की बंदगी चाहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मलिका बिल्किस से कहो कि वो अल्लाह से डरे और उस पर ईमान ले आए और उसकी ही इबादत करे और मेरी बारगाह में आए। अब मलिका बिल्किस समझ चुकी थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सच में अल्लाह के नबी हैं। मलिका ने सिर झुका लिया। अब वो समझ चुकी थी या तो अल्लाह के सामने सिर झुकाना होगा और या फिर सब कुछ गंवाना पड़ेगा। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक बड़ी मीटिंग कर रहे थे। दरबार में उनकी इस मीटिंग में वजीर, जंगी अफसर, उलेमा और हुदहुद भी था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, मगर क्या ही अफसोस की बात है कि हम तौहीद का परचम लिए जिंदा हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी सूरज को सजदा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मलिका बिल्किस जिस तख्त पर बैठकर हुकूमत करती थी, वो तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। उस तख्त में सोना चांदी, हर तरह के हीरे जवाहिरात लगे हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया, ऐ दरबारियों, तुम लोगों में से कौन ऐसा है जो मलिका बिल्किस के यहाँ आने से पहले उसके तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। दरबार में से एक बड़ा जिन बोला, हुजूर, उस तख्त को मैं आपकी बारगाह में दरबार खत्म होने से पहले ही हाजिर कर सकता हूँ, मेरे पास वो काबिलियत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और कोई है जो इससे भी ज्यादा जल्दी ला सकता है? ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर, जिनका नाम आसिफ था, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर, मैं मलिका बिल्किस का तख्त पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हामी भरी, अचानक मलिका बिल्किस का तख्त उनके सामने था। हजरत आसिफ ने अल्लाह ताला की अता की हुई ताकत से सबा की मलिका बिल्किस के तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया और वो तख्त जमीन के नीचे से होते हुए एक पल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि ऐसा मंजर इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। प्यारे दोस्तों, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी की क्या शान होगी। मलिका बिल्किस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी बहता हो और पानी में मछलियाँ और दूसरे जानवर भी हों। उधर हुदहुद परिंदा मलिका बिल्किस के महल में मौजूद था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। इसी दौरान मलिका बिल्किस के दरबार में मीटिंग के लिए लोग जमा हो चुके थे। मलिका बिल्किस ने बाइज्जत तौर पर मीटिंग की। हर शख्स के चेहरे पर परेशानी थी और खामोशी छाई हुई थी। मलिका ने थके हुए लहजे में कहा, हम बहुत नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें अल्लाह के आगे सर झुकाने का हुक्म दे रहे हैं। वो हमारी ताकत को मिटा देने की धमकी दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे मशवरा दें, कोई बेहतर रास्ता दिखाएं। अमीर और वजीर इस बात पर मुत्तफिक हुए कि शायद मलिका ही अपने हाथों से
और ज़्यादा बड़े तोहफे लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाए। हो सकता है यही सलामती का सबब बन जाए। लेकिन अगर उन्होंने ये तोहफे भी कबूल नहीं किए तो फिर जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा और ये जंग हमें तारीख से मिटा भी सकती है। हर शख्स के लिए अब सिर्फ मलिका बिल्कीस ही उम्मीद की आखिरी किरण थी। इसलिए मलिका ने एक बड़े फैसले का ऐलान किया, मैं खुद जाऊंगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में और हर हाल में अमन की कोशिश करूंगी। उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब कुछ जान चुके थे। वो ये समझ चुके थे कि मलिका बिल्कीस को ताकत का असल मतलब गलत समझ आया है। वो अपनी तरक्की और तिजारत पर फख्र करती है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें एक अहम सबक देना चाहते थे। असल अज़मत उसी कौम को मिलती है जो तौहीद के परचम तले रहती है, जो एक अल्लाह को मानते हैं। अगर तुम दुनिया हार जाओ लेकिन अल्लाह को पालो तो तुम जीत गए, लेकिन अगर तुम पूरी दुनिया पालो लेकिन अल्लाह से दूर हो जाओ तो सब कुछ बेकार है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त मंगवाया, लेकिन उसके नक्शो निगार में तब्दीली का हुक्म दिया। उन्होंने देखा कि तख्त पे सूरज का निशान बना है और कहा, यह कितनी अजीब बात है, चाहे सूरज सोने का बना हो फिर भी उसके आगे झुकना नादानी है। इस दौरान मलिका अपने सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थी। नए रंगीन और कीमती तोहफे तैयार किए जा रहे थे। वहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे बेहतरीन बिल्डर को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा महल बनाया जाए जो पानी के ऊपर हो, जिसका फर्श इतना साफ हो कि लोग समझें कि नीचे सिर्फ पानी है। उस बिल्डर ने जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मैं फर्श शीशे का बना सकता हूँ, नीचे का पानी साफ साफ नजर आएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बिल्कुल, बस वैसा ही चाहिए। मेमार ने पूछा, अगर जिन भी मदद करें तो सिर्फ 2 हफ्तों में ये महल तैयार हो सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्यों नहीं, जिन्न को हुक्म दिया जाए, लेकिन फर्श पूरा शफाफ हो। जब मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान के शहर के करीब आई तो हुदहुद और एक अफसर उनका इंतज़ार कर रहे थे। मलिका ने देखा कि ये शहर वाकई अनोखा है। जब मलिका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की झलक देखी, उसकी रूह कांप उठी। ये लश्कर इंसानी नहीं लगता था। वो समझ गई ये कुव्वत किसी खुदाई ताकत का निशान है। जब वो महल के नज़दीक पहुंची, उसका घमंड सब गिरता चला गया और फिर उसने देखा वो अजीम महल जिसका दरवाज़ा शीशे का था, फर्श नीचे से पानी जैसा लग रहा था। बिल्कीस ने सोचा कि ये असल में पानी ही है। उसने अपने लिबास को ऊपर उठा लिया ताकि पानी से भीग न जाए। उस वक्त उसके पैर नजर आए। अहम बात यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये शीशा सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनवाया था, बल्कि ये एक इम्तहान था। उनके पास एक राज था। अगर बिल्कीस आधी इंसान और आधी जिन हो, इस तरह उन्हें पता चल जाता। ये बात मुख्तलिफ रिवायात में मिलती है, लेकिन कुरान में ऐसी कोई बात साफ तौर पर नहीं आई। ज़्यादातर मुसलमान उलेमा कहते हैं कि बिल्कीस एक इंसानी औरत थी। ये अफवाह इसलिए थी कि ये जिन्नों की चालाकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका से शादी करें और उनका बेटा जिन्नों पर वापस हुकूमत करे। लेकिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के पैर देखे तो वो मुतमईन हो गए कि वो इंसान ही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ मत, ये पानी नहीं है, ये फर्श है, इससे तुम्हारा लिबास गीला नहीं होगा। ये सुनकर बिल्कीस शर्म से पानी पानी हो गई। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को उसका तख्त दिखाया। बिल्कीस हैरान रह गई। उसने कहा, ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा दिखता है। तख्त के नीचे लिखा था,
हम अल्लाह पर कुर्बान होने वाले बंदे हैं। वो समझ गई कि ये तख्त उसका ही था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही उसका तख्त मंगवा लिया था। उस दिन उसे दावत आम दी गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के साथ बैठकर उससे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, ये सूरज जिसे तुम पूजती हो इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया है और इंसान अल्लाह के लिए। मलिका बिल्किस के दिल से सूरज की चमक धुंधली हो गई और एक नई रोशनी चमक उठी, तौहीद की रोशनी। इसी वक्त उसके वजीर आए और कहने लगे, मलिका, सूरज गुरूब होने वाला है, चलिए सजदा करने का वक्त हो गया है। लेकिन मलिका ने कहा, तुम सब बेवकूफ़ हो, अब भी नहीं समझते हो कि सूरज सजदे के लायक नहीं है। शैतान ने हमें धोखा दिया। उस वक्त मलिका के दिल में एक नरम रोशनी उतरी, वो रोशनी जो कभी गुरूब नहीं होती। और फिर उसने दिल से इकरार किया, मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इस तरह मलिका के बाद कौम सबा के लोग भी मुसलमान हो गए। उन्होंने सूरज को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा करना शुरू किया। और ये सब कुछ एक छोटे से परिंदे हुदहुद के जज्बात से शुरू हुआ था। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक जिंदा सबक है हर उस शख्स के लिए जो ताकत और दौलत मिलने के बाद अपने रब को भूल जाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ने हमें सिखाया कि असली ताकत सिर्फ वो नहीं जो हाथों में हो या फौज में हो, बल्कि असली ताकत है इल्म, हिकमत और इंसाफ। और सबसे बड़ी बात, हर मुकाम पर अल्लाह की रहमत का इकरार करना, उसके हुक्म के आगे झुक जाना और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि जब तक हम अपने इल्म का इस्तेमाल इंसानियत की खिदमत में नहीं करते तब तक वो इल्म अधूरा है। आज भी अगर हम चाहें तो उनके उसूलों पर चलकर अपनी ज़िंदगी में इंसाफ, ईमान और इल्म को अपना रास्ता बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये था वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस पहलू ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। और हाँ, ऐसे ही और रूहानी, तारीख़ी और इल्म से भरपूर इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको अपने पैगंबरों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।